நாம் பரிசுத்த வேதாகமத்திலே கர்த்தருடைய கண்கள் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழ் நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். लगभग 2 हफ्ते से परमेश्वर की आंख नजर जो सारी पृथ्वी पर लगा रहता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया. முதலாவது நாம் தியானித்தோம் கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर की आंख पृथ्वी के छोर तक हर भाग हर हिस्से में लगा रहता है. போன வாரத்தை பார்த்தோம் கர்த்தருடைய கண்கள் மனுஷனுடைய வழிகளையும் நடைகளையும் பார்க்குது. परमेश्वर की आंख इंसान के रास्ता और उसके चाल चलन के ऊपर ध्यान रखता है. मेरे प्रिय लोगों, उसकी आंख क्या करता है, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर है, कहाँ बैठे, और सब कुछ वो ध्यान रखता है. இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறது கர்த்தருடைய கண்கள் இருதயத்தை பார்க்கிறது. परमेश्वर की आंख जो है हर इंसान हर व्यक्ति के हृदय को दिल को परखता है. இருதயத்தை அதிரசிரதாம் பார்க்கிறதாம். மனுஷன் பார்க்க கூடாத அந்த இருதயத்தின் நினைவுகளை அது பார்க்கிறது. जो इंसान देख नहीं सकता है उस विचार को, उस धड़कन को, उस शब्द को परमेश्वर की आंख उसे देखता है. பைபிள் என்ன சொல்லுது? 1 சாமுவேல் புத்தகம் 16ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். 1 சாமுவேல் புத்தகம் 16वां अध्याय 7 वचन. परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कर की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है. क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं. मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है. यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने सामुएल से कहा. सामुएल एक नबी है, भविष्यवक्ता है. उससे देखकर कहा कि परंतु मैं उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ताकत को नहीं देख रहा हूं. परंतु जैसे इंसान एक व्यक्ति के रूप को, चेहरे को देखता है, वैसा मैं नहीं देखता हूं, परंतु मैं उसकी दिल को मैं परखता हूं. கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி, நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டாம். நான் இவனை புறக்கணித்தேன். மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன். மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான், கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார். அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் அவர் தீர்க்கதரிசியாக சாமுவேலை பார்த்து சொல்கிறார், நீ அவனுடைய சரீர வளர்ச்சியை பார்க்கிறாய், அவனுடைய தோற்றத்தை பார்க்கிறாய், ஆனால் நானோ அவனுடைய இருதயத்தை ஆராயக்கூடிய தேவன். परंतु परमेश्वर ने सामुएल नबी से इस प्रकार से कहा, तू उसकी रूप को देखता है, उसकी बढ़ोतरी को देख रहा है, परंतु मैं इंसान के हृदय को मैं परखता हूं. कई समय पर हमारा जीवन इस प्रकार से हो जाता है. अनेकों வாழ்க்கை இப்படிதான். एक लड़की देखने जाए या लड़का देखने के लिए जाए, आजकल हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, वो लड़का खूबसूरत है या गोरा है, उसका परिवार कैसा है, या डिसेंट है या अनडिसेंट, ये देखते हैं. नहीं चलो कितना मिलेगा, कितना हम लोग उनसे ले सकते हैं. ஆனா ஒரு நம்ம என்ன செய்றோம், இன்னைக்கு நடக்கிற சம்பவங்கள், ஒரு பையனும் பெண்ணை பார்க்கும்போது நினைச்சாங்க அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்கு, நல்ல டீசென்டான குடும்பமா, நல்ல பணம் கொடுப்பாங்களா, பொருள் நல்ல அழகா இருக்கா, நல்லா படிச்சிருக்கா, இப்படி நம்ம என்ன செய்றோம், शरीर प्रकारமான உலக பிரகாரமான தோற்றத்தை பார்க்கிறோம். हम संसार के रीति के देखते हैं. ஆனால் அந்த பெண், அந்த பையன், वो लड़की वो लड़का या आत्मिक जीवन में कैसा है, ये परिवार के लिए कैसा है, हमारे कुटुंब के लिए कैसा है, जब परिवार में आएगा सास ससुर के लिए कैसा है, அந்த குடும்பத்துல வந்தா அந்த குடும்பத்தோட எப்படி அந்த பெண் நல்லா சேர்ந்து அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து மாமியாருக்கு மாமனாருக்கு அங்க இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கீழ்ப்படிதல் உள்ள ஒரு பெண்ணாக இருப்பாளா என்று சொல்லி நாம் அதை கவனிக்கிறதில்லை. हम उस पर ध्यान नहीं देते. பைபிள் வாசிக்கிறாங்களா, நல்ல ஜெபத்துக்கு போறாங்களா, நல்ல கூட்டங்களை கலந்து கொள்றாங்களா, अच्छे प्रार्थना में भाग लेते हैं, अच्छा बाइबल पढ़ने का आदमी गुण है, उसको हम देखते नहीं. हमें केवल जो है बाहर के रूप पर हम पसंद करते हैं. நாம் வெளி தோற்றத்தை நேசிக்கிறோம், நாம் பிரியப்படுகிறோம். ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார், இது மனுஷனுடைய செயல்கள், மனுஷனுடைய குணங்கள், ये इंसान का गुण है, इंसान का विचार है. இதனால நாம் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறோம். इसलिए हम ज्यादा नुकसान पाते हैं, ज्यादा हमें तकलीफ होता है, बाद में हम पछताते हैं.
பிற்பாடு நாம் நிறைய கஷ்டங்களையும் வேதனைகளும் அனுபவிக்கிறதாக இருக்கிறது. ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார், நான் இப்படிப்பட்ட தோற்றத்தை பார்த்து முடிப்படுத்துவதல்ல, मैं ऐसे विचार को, ऐसे उसके शारीरिक बढ़ोतरी को देखकर मैं निर्णय लेता हूं, परंतु मैं दिल को मैं परखता हूं, इंसान के मन को मैं परखता हूं. ஆனால் மனுஷனுடைய இருதயத்தை நான் பார்க்கிற தெய்வம், மனுஷனுடைய இருதயத்தை அவருடைய கண்கள் பார்க்கிறது. इसे आप सभी लोग याद रखें. हमारे हृदय में क्या नाम लेते हैं, किसके विचार है, किस प्रकार से वो हृदय धड़कता है, परमेश्वर जानता है. அதனால நம்முடைய இருதயம் அவருக்கு மறைவானது இல்லை. அது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது, என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது, எப்படிப்பட்ட நினைவுகள்ல இருக்கிறது, कैसे विचारों में है, क्या बात को बोल के वो धड़कता है, परमेश्वर को पता है. हालेलुया, हालेलुया. தேவன் இருதயத்தை ஆராயக்கூடியவர் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். परमेश्वर हमारे हृदय को परखता है. अब मेरे हृदय में क्या है, मेरा मन में क्या है. हर इंसान पापी है. ஒவ்வொரு மனுஷனும் பாவமான மனுஷன் தான். பாவ इच्छेகள் வராது என்று சொல்ல முடியாது. पाप की विचार नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल सकते. हर व्यक्ति के अंदर पाप का गुण है. लेकिन पापத்தினாலே நாம் இந்த பூமிக்கு வந்தவர்கள், क्योंकि हम पाप से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए पाप के विचार हमारे अंदर होता ही है, पाप का गुण हमारे अंदर होता है, பாவத்தின் குணாதிசயங்கள் நமக்கு உண்டு. ஆனால் அதுக்கு என்ன வழி, उसके रास्ता क्या है. ஆனால் நாம் ஜெபிக்கிற ஜெபம் என்னையும் हमें वाल வைக்கும். हालेलुया. हमारा प्रार्थना जो है हमारे जिंदगी को बनाता है, बढ़ोतरी में ले जाता है. எப்படி ஜெபம் பண்ணுவீங்க, कैसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்துகிறோம். கடிந்து ஜெபம் பண்ணும். மாம்ச கிரியைகளே, மாம்ச சிந்தனைகள், மாம்ச எண்ணங்கள், கண்களின் இச்சை, கண்களின் பார்வைகளின் அலசைகளை கடிந்து ஜெபிக்கிறேன். உமக்காக வாழணும், பரிசுத்தமாக வாழணும். कैसा प्रार्थना है, मैं शारीरिक इच्छा को, शारीरिक आशा को, शारीरिक अभिलाषा को मैं डांटता हूं. प्रभु आप मुझे मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे जीवन में बढ़ोतरी दीजिए, मेरे कुटुंब में बढ़ोतरी दीजिए. तो क्या होता है, जो पाप का जो गुण है वो हमारा बढ़ोतरी होता है, वो कम होता है. प्रार्थना से, स्तुतियों से क्या होता है, हमें सहायता मिलता है. அப்போ இந்த பாவத்தின் கிரியைகள், பாவத்தின் இச்சைகள் நாம் கடிந்து கொள்ளும்போது அது ஜெபத்தினால் என்ன செய்யும், அது பலவீனப்பட்டு போகும், அது உடைந்து போகும். அது ஜெபம் என்ன செய்யும், நம்மை வாழ வைத்துக் கொண்டே இருக்கும். प्रार्थना में बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. ये उनमें मेरे बच्चों को सिखाया, क्योंकि दो विचार है, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों विचार है, ரெண்டு நினைவுகள் இருக்கு. पवित्र आत्मा परमेश्वर था, हम परमेश्वर बोलते थे, यहोवा बोलते थे, हमारा अब्राहम, इसहाक, याकूब. उसके बाद मूसा के काल के बाद परमेश्वर का नाम दिया गया, परंतु लोगों ने उसके नियम को तोड़ दिया. उसके बाद यीशु को इस धरती पर आना पड़ा. तब यीशु ने क्या बोला, कि मैं परमेश्वर होने पर तुमको मैं छोड़कर गया था, इसलिए तुम रास्ता भटक गए. நான் தேவனாய் இருந்தபோது உங்களை தனிமையாக விட்டதனாலே நீங்கள் வழி விலகி போனீர்கள். ஆதாமும் ஏவாளையும் தனிமையாக விட்டதனால வழி விலகி போனாங்க. परमेश्वर ने बोला, आदम और हवा को मैंने अकेले छोड़ दिया, रास्ता भटक गया. இயேசு பூமியில இருந்தாரு. अब मैं कुर्बान हो गया हूं. இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன், அடிக்கப்பட்டு நான் மரித்து விட்டேன். இப்போ நான் வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறேன். अब मैं स्वर्ग में उठा ले जाने वाला हूं. திரும்ப நீங்க தனிமையாக இருக்க போறீங்க. फिर तुम अकेले रहने वाले हैं. அதனால வழி விலகி போக கூடாது என்று சொல்லி பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஒரு அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டது. पवित्र आत्मा के एक चिन्ह हमें दिया गया है. हालेलुया. पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर रहकर वो हमारी मदद करता है, वो हमारे दिल में बसता है, वो हमारी सहायता करता है. इस रास्ते से मत जाओ, அந்த வழியாக போக வேண்டாம், இந்த பாதையாக போக வேண்டாம். जब हमारे अंदर गलती होता है तो बताता है कि महसूस कर रहा था कि तुम्हारा शारीरिक विचार बढ़ रहा है, पाप गुण बढ़ रहा है, तो पाप के विचार को डांटो. अब मांस से கிரைகள் வெளிப்படுகிறது, மாம்ச இச்சைகள் வருகிறது, பாவ சிந்தனை வருது, அதை கடிந்து கொண்டு என்ன செய், ஜெபம் பண்ணு. पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है. हालेलुया, हालेलुया. वो हमारी सहायता करता है. इसलिए परमेश्वर ने सामुएल को बोला
तू जिस प्रकार से देखता है वैसा मैं नहीं देखता हूँ, मैं हृदय को मेरा आंख देखता है. அதில் ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை சிந்தனைகளை தேவன் கண்கள் பார்க்குது. हर एक व्यक्ति के विचारों को गुणों को परमेश्वर के आंख देखता है. हालेलुया. தேவன் को மறைவாக எதுவுமே இல்லை. परमेश्वर के आंख से कुछ छुपा नहीं है. தேவனுடைய கண்களுக்கு ஒருவரும் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. பாவம் செய்கிற யாராக இருந்தாலும் जो गलती करता है वो गलती का श्राप मिलता है, उसका सजा मिलता है और செய்கிற பாவத்துக்கு தண்டனை உண்டு. நீதிவசன புத்தகம் 21 நீதிமொழிகள் புத்தகம் 21:2 மனுஷனுடைய வழிகளெல்லாம் அவன் பார்வைக்கு செம்மையாக தோன்றும். வழிகள் யாருடைய பார்வைக்கு? அவன் பார்வைக்கு செம்மையாக தோன்றும். ஆனால் கர்த்தரோ இருதயங்களை என்ன செய்கிறார்? நிறுத்து பார்க்கிறார். இனிமே படிய मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है. मनुष्य के उसका चाल चलन उसका रास्ता उसके क्या होता है? भलाई होता है, अच्छे लगते हैं. मैं सही हूँ, मैं सही चल रहा हूँ. परंतु परमेश्वर यहोवा मन को जांचता है. परंतु वो जांचता है, परखता है. ना நடக்கிற நான் சரியாக இருக்கிறேன், मैं बराबर ही हूँ, मैं बराबर से बोलता हूँ, मैं बराबर से जी रहा हूँ, बराबर से चलता हूँ, நான் சரியாக தான் வாழ்கிறேன், சரியாக தான் இருக்கிறேன், சரியாக தான் நடக்கிறேன். ஆனால் கர்த்தர் இருதயங்களை நிறுத்தி பார்க்கிறார். बाइबल சொல்லுது, बाइबल का वचन कहता है तुम बाहर से बोलते हो मैं बराबर हूँ, मैं सही हूँ, पर हृदय को परमेश्वर परखता है. हृदयத்தை நிறுத்தி ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். तुम बलि वेद वचनத்துக்கு ஏற்ற பிரகாரமாக இருக்கணும். आपका रास्ता परमेश्वर का वचन का प्रति होना है. தேவனுடைய வசனத்தின் பிரகாரமாக நாம் வாழ வேண்டும். அதற்காக தான் இயேசு தேவன் வேதாகமத்தை நம்முடைய கரங்களில் கொடுத்திருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर ने बाइबल हमारे हाथ में दिया है. அதை படிக்கணும், उसको पढ़ना है. அதிலே கட்டளைகள், பிரமாணங்கள், நியமங்கள் இருக்குது. उसके में आज्ञा है, नियम है, उसको हम पालन करना है. उसमें हमें चलना बहुत जरूरी है. ஆனால் தேவனுடைய கண்களோ இருதயத்தை நிறுத்தி பார்க்குது. हमारे हृदय के हर विचार को वो परखता है. இன்னொரு வாசகம் பாருங்கள், யோவான் 8:3 John chapter 8 verse 3 பிடிக்கப்பட்ட அவளை கொண்டு வந்து நடுவில் நிறுத்தி இந்த ஸ்திரீ விபச்சாரத்தை கையும் களவுமாக நாங்க பிடித்தோம். அந்த மனுஷன் சொல்றாங்க, வேற யாரும் சொல்லல, அவங்க பிடித்தவங்க சொல்றாங்க. इसको पढ़िए हिंदी में देखो. जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए तो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई है. ये स्त्री जो है गुरु व्यभिचार करते समय पर हमने इसको पकड़ा है. किसने पकड़ा? जो लोग वहां पर खड़े फरीसी सदस्य, वो लोगों ने बोला कि हमने इसको गंदा काम करते हुए, गलत काम करते हुए हमने उसको पकड़ा है. இவர் விபச்சாரம் செய்ய போது இவர் கையும் களமாக பிடிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீ என்று சொல்லி இயேசுவின் இடத்திலே கொண்டு வந்தார்கள். उन्होंने इसको पाप करते हुए देखा है. पाप करते हुए पकड़ा गई. பாவம் செய்யும்போது பிடிப்பட்டால், பாவ வாழ்க்கையிலே பிடிப்பட்டால், தவறு செய்யும்போது பிடிப்பட்டால், களவு செய்யும்போது பிடிப்பட்டால், चोरी करते समय पर पकड़ा गया, झूठ बोलते समय पर पकड़ा गया. पर आप क्या बोलते हैं? ஆனால் நீர் என்ன செய்ய போகிறீர், என்ன சொல்ல போகிறீர் என்பதுதான் நாம் நினைக்கிறோம், கேட்க வந்திருக்கிறோம். पर इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, आप क्या बोलने वाले हैं, यही हमारा उत्तर है. इसलिए हम आपके पास आए. मेरे प्रिय लोगों, जज के पास बहुत सारे क्या होता है, केस जाते हैं. जज क्या करता है? उसको न्याय देता है. दोनों वकील लड़ते हैं, जो चोरी किया, जो चोरी नहीं किया, दोनों के लिए वहां पर लड़ाई होता है. ये बोलते हैं चोरी किया, वो बोलते हैं उसने चोरी किया ही नहीं. पर जिसके पास प्रूफ है उसको बात को माना जाता है, उसको सजा मिलता है. पर वो बिना चोरी किए भी उसको सजा मिल जाता है, अपराध बिना भी सजा मिल जाता है. क्योंकि वो जज को उसके हृदय को नहीं परखा है, उसकी हृदय को नहीं देखा है, उसके शब्दों को परखा है, इंसान के शब्दों से उसे सजा दिया है. न्याय देने से ரெண்டு பேருடைய வாதத்தை கேட்டு அவர் என்ன செய்கிறார்? அந்த மனிதனுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறார். அவன் ஒருத்தரை குற்றம் செய்தவனும் செய்யாத மனுஷனும், ஆனால் இவருடைய வார்த்தை மூலமாக அவன் தண்டிக்கப்படுகிறான். ஆனால் அவனுடைய இருதயத்தை அந்த நியாயாதிபதி பார்க்க முடியாது.
அவனுடைய இருதயத்தில் அவன் குற்றவாளி அற்றவனோ அவர் பார்க்க முடியாது. அதான் வேத வசனம் சொல்லுது. ஆனால் தேவன் இருதயத்தை பார்க்கிறார். இந்த பெண் விபச்சாரம் செய்தவள், ये स्त्री विभचार किया, गंदा काम किया है, इवर साध வேண்டும் என்பது கட்டளை, इसको मौत का सजा देना नियम है. வேத வசனம் அவன் கல்லெறிந்து கொலை செய்யப்பட வேண்டும், उसको पत्थर से मार देना है. लेकिन அப்படிதான் நிறைய பேர் இருக்காங்க, मार देना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे ही ऐसे हत्यारा गुण से, खूनी गुण से, कमन तब क्रोध, एक बड़ी क्रोध है ना, किसी को मार देना है, खत्म कर देना है, ऐसे विचार रखता है. हाँ, தேவன் நினைச்சார் இயேசு அந்த பொறுமையோடு ஒரு சாந்த பேட்டா है और பொறுமையோடு என்ன செய்கிறார், அந்த பெண்ணுடைய இருதயத்தை அப்படியே ஆராய்கிறார். கீழே அப்படியே எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறார். அந்த பெண்ணுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார். वैसे नीचे लिख रहा है, उसकी हृदय को परखा, उसकी हृदय को देखा, ये कहां पर गिरा हुआ है, ये कहां पर फंसा हुआ है, क्या परिस्थिति में है, और என்ன சூழ்நிலை இருக்கிறார், என்ன நிலைமையில் விழுந்து கிடக்கிறார், என்ன வாழ்க்கை வாழ்கிறார், அந்த வாழ்க்கை வாழ காரணம் என்ன, அவர் இனிமேல் அதை அறிந்து கொண்டார். சர்வமே சமர்ப்பியா. அப்பொழுது ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான், எப்பா நீங்க எல்லாம் குற்றவாளியாக நிறுத்திட்டீங்க, ஆனா உங்க இருதயத்துல இது வரைக்கும் பாவம் செய்யாத மனுஷன் எவன் உண்டோ கல்லை எடுத்துட்டு போப்பான். हालेलुया. उसने सबके हृदय को देखकर बोला, तुम्हारे हृदय में मन से अब तक तुमने गलती पाप नहीं किया ना, पत्थर मारो. हालेलुया, हालेलुया. यदि முடியல, नहीं मार सकते, परमेश्वर मन को परखा, उसकी मदद के वो गिरा है, लोग उसको मार देना चाहते हैं, पर परमेश्वर उसको हाथ दिया, தூக்கி விடுகிறார். அவருடைய கண்கள் இரக்கமுள்ள ஒரு கண்கள், அன்பு நிறைந்த கண்கள், आदरिकर और कणगल, उसके आंख जो है एक दया से भरा है, प्रेम से भरा है, वो सहायता और मदद करता है. கண்கள் ஒவ்வொரு மனிதனையும் பார்ப்பதாக இருக்கிறது. அதனாலதான் நம்ம எழுதுகிறோம், சில நேரங்களில் விழுந்து போனாலும், தள்ளாடினாலும், தடுமாடினாலும் கூட, ஐயோ என் வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியாது, मेरे घर के लोगों को नहीं पता है, அவங்க என்ன வேற விதமாக பார்க்கறாங்க, நான் தான் தவறு செஞ்சேன், मेरे गलती क्या लोग देखते मुझे, मेरे पर क्रोध कर रहे, झगड़ा कर रहे, नफरत कर रहे, पर परमेश्वर क्या कर रहा है, मेरे हृदय को देख रहा है. ஆனால் தேவன் செய்கிறார், அவங்க என் மேல குற்றம் சுமத்துறாலும் தேவன் இருதயத்தை பார்க்கிறார். ஆண்டவருடைய சமூகத்தை உட்கார்ந்து, ஆண்டவரே நான் இப்படி வேதனைப்படுகிறேனே, நான் இப்படி கஷ்டப்படுகிறேனே, मैं ऐसे तकलीफ उठा रहा हूं, मैं ऐसी मुसीबत में पड़ा हूं, मेरे पर ऐसा दोष लगा रहे हैं, मुझे अपराधी समझते हैं, जो मुझे पाना ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे में सब पलट जाता है, पता आपको. हालेलुया. मेरे प्रिय लोगों, गलती को कोई नहीं छुपा सकता है, परमेश्वर की आंख देख रहा है. तो अपने आंखों में धूल रखे, दूसरे के आंखों में जाकर के परमेश्वर क्या बोलता है, पहले अपने आंखों के धूल को निकाल. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லு, உன் கண்ணில் இருந்து புத்திரத்தை கண்ணில தூசி வச்சிட்டு அடுத்தவங்க கண்ணை பார்க்கும்போது தேவன் என்ன செய்வார், முதல் உன் கண்ணில் இருக்கிற நெசி எடுத்து போடு. हालेलुया. उसके बारे में उनके बारे में बोलने का हमें हक नहीं है, इस परिवार के बारे में, उस परिवार का, उस बहन वो भाई, पहले हमारा परिवार कैसा है, पहले हम कैसे, उससे देखना है. परमेश्वर की आंख जो है सभी को देखता है. अगले जो चौथा पॉइंट में जाएंगे, கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது. परमेश्वर की आंख किस पर रहता है, धर्मी लोगों के ऊपर. நீதிமான் யார் தெரியுமா, கர்த்தருக்கு பயந்து வழிகள் நடக்கிறவன் எவனோ, जो परमेश्वर की भय मान को उसके राह पर जो चलता है वो धन्य है. கர்த்தருக்கு பயப்படுற மனுஷன் நீதிமான். தேவனுடைய பெயரை சொல்லி ஜெபிக்கிற மனுஷன் நீதிமான். जो प्रभु के नाम पर भय मानता है, आंडवर यन देवन यन तगपन यन कर्ता इन्हें पार किया, मेरा परमेश्वर मुझे देखता है, उसका नजर मुझ पर है, उसका डर और भय रखकर मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं अच्छे रास्ते में चलूंगा, खरा रास्ते में चलूंगा, ना पाप वழியில நடக்க மாட்டேன், தவறுகளை செய்ய மாட்டேன், தேவனை பார்க்கண்டு பயந்து பயபக்தியோடு வாழ்கிற மனுஷன் தான் நீதிமான். ஹalleluya, ஹalleluya. அதனால நம்ம மேல தேவனுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் உண்டு. इसलिए हमारे ऊपर ज्यादा उसका हमेशा रहता है, जो बाकी लोगों से भी हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान रखता है, ज्यादा नजर रखता है. धार्मिक व्यक्ति कहाँ है, धार्मिक व्यक्ति कहाँ बैठा है,
कौन सा थिएटर में बैठा है, कौन सा पिक्चर देख रहा है, कौन सा टीवी के बीच में बैठा हुआ है। हालेलुया। वो तो उसका आप जो है ज्यादा उनके ऊपर लगा रहता है, भाई तुम कहां पर बैठे हो। परमेश्वर का हाथ जो है ज्यादा अपने लोग के ऊपर, जो लोग ने उधार पाकर बपतिस्मा लिया है उन सबका हिस्ट्री जो है उसके हाथ में है। उनके நேர்ச்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்த ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த हिस्ट्री சரித்திரமும் அவருடைய கையில இருக்கு, लिस्ट उसके पास है, वो सब का हिसाब उसके हाथ में। वो धार्मिक व्यक्ति है, इससे ज्यादा हमारे नजर रहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, केवल सहायता करने के लिए बाइबल वचन पढ़ेंगे। बस करो, अब पढ़ेंगे भजन संगीता पुस्तक 34:15, संगीतம் 34:15। கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் நோக்கமாக இருக்குது, அவருடைய காது செவி அவருடைய கூப்பிடுதலுக்கு காத்திருக்கிறது। परमेश्वर की आंख उसके प्रजा के ऊपर लगा हुआ है, जब वो पुकारते हैं, आवाज देते हैं, उसके कान खुला रहता है। हालेलुया। அப்படியே கூப்பிடும் போதெல்லாம் நீங்க இங்க இருந்து அங்க இருந்து எங்க இருந்து கூப்பிட்டாலும் கூட அவருடைய காது திறந்து இருக்கிறது, அவருடைய செவிகள் என்ன செய்து திறந்து இருக்குது, அவர் நம்முடைய வேண்டுதலுக்கும் கூப்பிடுதலுக்கும் என்ன செய்கிறார், கவனிக்கிறவராக இருக்கிறார்। நீதிமானுக்காக, நீதிமான் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது, धार्मिक के ऊपर लगा रहता है। அவன் எங்க இருக்கிறான், என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான், எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறான், ஒரு நெருக்கம் வருது, ஒரு கஷ்டம் வருது, एक तकलीफ आता है, एक दबाव आता है, एक कष्ट आता है, परेशान आता है, ऐसे उடனே सब ஓடி வந்து உதவி செய்கிறான், तुरंत आके मदद करता है, तुरंत आके सहायता करता है। और विपत्ति नेरिड़ போது, एक बड़ी दुर्घटना होने वाला है, वो सब तुरंत हमारे साथ आकर हमारी मदद करता है। हालेलुया। अभी हम प्रभु से प्रार्थना करें, कुछ भी तकलीफ है कुछ भी प्रार्थना करो, बोले कि वो कान लगाकर सुनता है, प्रार्थना सुनता है, कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो मरता है, कुछ तो मदद चाहता है, हमारा तुरंत मदद करेगा, उतरता है। और जब वे लोग प्रार्थना करेंगे तकलीफ में, संकट में, वो बोलेगा कि कान उसका बहरा हो जाता है। हालेलुया। कई समय पे बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में क्यों ऐसा समस्या क्यों नहीं सुनता है, पास्टर मैं तो अच्छा हूं, मैं तो चर्च में आ रहा हूं, मेरा लड़के को ऐसा प्रॉब्लम है, लड़की का ऐसा प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो क्यों नहीं सुन रहा है। शायद परमेश्वर उनके लिए बहरा बन चुका है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धार्मिक है, पर परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थना से दूर है। अय्यूब का पुस्तक, யோபு புத்தகம் 36ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம், அவர் தம்முடைய கண்களை நீதிமான்களை விட்டு விலக்காமல், वो अपने आंखों को धर्मी से कभी नहीं हटाता है, அவர்களை ராஜாக்களோடு கூட சிங்காசனத்தில் ஏறவும், वो राजाओं के साथ उन्हें सिंहासन पर चढ़ाने के लिए, बिठाने के लिए உயர்ந்த ஸ்தலத்தில் என்னென்னைக்கும் உட்கார்ந்திருக்கவும் செய்கிறார்। हर समय ऊंचे स्थान में परमेश्वर में रखना चाहता है, ऊंचे स्थान में रखना चाहता है, உயர்வான இடங்களிலே தேவன் நம்மை வீட்டிற்கு பண்ணுகிறார், உயர்வான ஸ்தலத்திலே। हालेलुया। परमेश्वर में आदर देता है, क्योंकि हम धार्मिक है, हम उसके नियमों का पालन करते हैं, वचनों का पालन करते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, उसके पर विश्वास करते हैं, इसलिए हर समय में ऊंचे लोगों के साथ उसे हमें बिठाना चाहता है। இந்த உலகத்துக்கு இல்லாத ஒரு ஆதரவு கனத்தையும் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிறார்। इस संसार में नहीं ऐसा आदर और सम्मान परमेश्वर में देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो वचन का पालन करता है, भय मानता है, वो धन्य होगा। கர்த்தருக்கு பயந்த வழியில் நடக்கிறவனோ பாக்கியவான், அவனுக்கு நன்மை நிச்சயம் உண்டாகும், அவன் நன்மையிலே அவன் பெற்றுக்கொள்வான், அவன் भलाई को प्राप्त करेगा, அவனுடைய வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும், उसका जीवन में भला होगा, அவன் सुखित இருப்பான், वो सुख से रहेगा। मैं परमेश्वर आदर करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, प्रभु मेरी आदर करता है। 1 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம், கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமான்கள் மேல் நோக்கமாய் இருக்கிறது, அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாய் இருக்கிறது, தீமை செய்வதற்கோ கர்த்தருடைய முகம் विरोधமாக இருக்கிறது। परमेश्वर की आंख धार्मिक के ऊपर लगा हुआ है और उसके कान उनकी आवाज के लिए बहुत ध्यान से, प्यार से वो सुनता है, पर बुराई करने वाले लोगों से परमेश्वर अपने मुंह को मोड़ लेता है। हालेलुया। அப்போ தேவனுடைய கண்கள் நாம் ஜெபிக்கும் போது, வேண்டிக்கும் போது மிகவும் கவனமாக உத்து கேட்கிறார், बहुत ध्यान से परमेश्वर सुनता है। நீதிமான் ஜெபத்தை கவனமாக கேட்கிறார்। अगर நீங்க என்ன ஜெபம் பண்ணீங்க, अगर நீங்க என்ன ஜெபம் பண்ணீங்க, भाई आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, बहन आप क्या बोल रहे हो, वो बहुत ध्यान से सुन रहा है, ரொம்ப கவனமாக கேட்கிறார்।
दुर्मार्गन பொல்லாத மனுஷன் ஆயிட்டான், बुरा व्यक्ति बन गया, दुष्ट व्यक्ति बन गया, उसके पर ध्यान रखता नहीं, அவனை கவனிக்கிறதும் விசாரிக்கிறதும் இல்லை. அப்ப ஏன் நல்லா இருக்கான்? वो क्यों अच्छा है? உங்கள் நிமித்தம் அவனை என்ன செய்யாம தொடாம வச்சிருக்கான். हालेलुया. आपके खातिर परमेश्वर ने उसको नहीं छुआ है. आपके खातिर उसको छूने से आपको तकलीफ होगा, आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, बाद में उपवास रहेंगे, बाद में परेशान करेंगे, इसलिए आपके खातिर उसको भी अच्छा रखा है. ஆனா உங்க காலத்துக்கு பிறகு அவங்களுக்கு அவன் நீதி प्रदान, आपके काल तक छोड़ेगा, आपके काल के बाद परमेश्वर नहीं लेगा साथ. हालेलुया, हालेलुया. அப்போ தேவனுடைய வசனம் அப்ப நம்முடைய வேண்டுதல் நம்ம என்ன சொன்னாலும் கவனமாக கேட்கிறான். मैं जो बोलता हूँ बच्चों को सिखाता हूँ, आत्मिक में बढ़ोतरी करता हूँ, प्रभु ध्यान से सुनता है. और मैं जब चलता हूँ, நான் நடக்கும்போது நான் கேட்கும்போது परमेश्वर ध्यान से सुनता है और हमारी मदद करता है. हालेलुया.